So today we'll deal with chapter 33 of bail, and for the purpose of bail jurisprudence, we will not only be dealing with chapter 33, but for every other provision that is incorporated into CRPC and it relates to bail, we'll deal with every single one of them. Bail jurisprudence is very important for judicial aspirants also and for lawyers also. For lawyers, it will decide their income in criminal litigation, and for aspiring judges, it will decide their grading in their annual confidential report. All right, so you need to know all this. So first I'll tell you what is the definition or what is the purpose of bail. The bail has to dovetail between two conflicting demands. At one side, it requires the society from being shielded from hazards of being exposed to the misadventures of the accused person, and on the other side, it has to balance the fundamental canon of criminal jurisprudence. A person is assumed to be innocent until proven guilty. So, what bail does, it blends and balances the apparently conflicting claims, that is, the freedom of an individual and the interest of justice. So, what is the general rule regarding the grant of bail? That the grant of bail is the norm and its refusal is an exception. So, we have to also see what is the definition of bail. Bail is actually not defined anywhere. But before going into what are the nuances of definition and classification of bail, I'll just tell you in short that etymologically, or in other words, if you look at the origin of the word bail, then it seems to have been derived from two terms. There is an old French word, bailer, which means to give or deliver, and there is another Latin term which means belair, which the Latin term is belair, which means to bear the burden, कि किसी चीज का भार अपने सर पे लेना. So bail, in other words, is a conditional liberty to an accused, and the object of that is merely to secure his presence before the court. Always remember, the object of bail is not actually to be punitive or anything else. The object of bail is merely to secure the accused person's attendance before court. Alright. So, I must also tell you a bit about the historical perspective about bail. See, in earlier times, पुराने ज़माने में क्या होता था, ये क्योंकि मिडीवल लॉ का भी कंसेप्ट है, ये अभी का नहीं बना हुआ कंसेप्ट है. इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस 7th सेंचुरी. तो इन शॉर्ट आई टेल यू कि यूएसए और यूके में क्या होता था कि पहले जो जस्टिसेस जो डिलीवर करते थे ना, उनकी सर्किट बेंचेस होती थी. तो पहले कोई कोर्ट हाउस नहीं हुआ करता था, मतलब कोर्ट हाउस हुआ करता था लेकिन वो सिर्फ बड़े बड़े कोर्ट्स के लिए हुआ करता था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट. तो जो आपके पहले जो सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते थे, उनको एक्चुअली ट्रैवल करना पड़ता था जस्टिस देने के लिए. दे हैड टू ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, तो बहुत ही ट्रैवलिंग जॉब भी थी. उनको सर्किट बेंचेस भी कहा जाता था, एंड यूजुअली नोबडी लाइक टू डू दैट. तो ऐसे ऐसे टाइम में जब किसी पे कोई एलिगेशन लगा करता था, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो वो डिजीज रिजल्ट जेल में जाए, या तो कोई उसके बिहाफ पे श्योरिटी बन जाए. तो एक्चुअली ऐसे व्यक्ति का जो अक्यूज पर्सन है ना, उसका भार किसी को दे दिया जाता था. दिस इज वाई इसका रिलेशन बर्डन से भी है, टू बेयर अ बर्डन. कि भाई ये जो अक्यूज पर्सन है, जब हम नेक्स्ट टाइम वापस इधर आएंगे, इस टाउन में आएंगे, क्योंकि ट्रैवल करते रहना होता था जस्टिसेस को, तो हम जब वापस आएंगे इधर, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो श्योरिटी अपॉइंटेड है, कि इस अक्यूज पर्सन को आप हमारे सामने प्रेजेंट रखेंगे. इसी वजह से जो बेल्ड पर्सन होता था, it was called that the surety is bearing the burden of such person. ऐसे व्यक्ति का जो अक्यूज है, उसका बर्डन बेयर कर रहा है, वो is such to be released on bail. और दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर बेल पे नहीं रिलीज हुआ तो डिजीज रिडल्ड जेल में जाएगा. इसलिए मैग्ना कार्टा तक में फॉर द फर्स्ट टाइम राइट टू बी रिलीज ऑन बेल वाज रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है.
We'll deal with all of those situations, but historical perspective of bail is essential to know so that you know what are the nuances of bail. Bail is type of a mechanism whereby the state devolutes upon the community the function of securing the presence of the prisoners and at the same time involves the participation of the community in administration of justice. देखिए बेल में जब व्यक्ति रिलीज किया जाता है तो बेल बॉन्ड्स दो लोग रिलीज करते हैं, एक तो अक्यूज खुद और एक श्योरिटी भी होता है. द श्योरिटी हिमसेल्फ ऑल्सो एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड. और इफ यू लुक एट द शेड्यूल 2 ऑफ द सीआरपीसी तो फॉर्म नंबर 45 है जिसके अंदर श्योरिटी और अक्यूज का बेल बॉन्ड लिया जाता है. ठीक है, तो जो भी थियोरेटिकल स्टेट की प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली इंटरलिंकिंग सेकंड शेड्यूल से भी करेंगे तो उनको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर को ये पता लगता है कि द पर्सन कंसर्न हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू सीआरपीसी. और सीआरपीसी इज टफ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कोड. और एज फार एज लॉयर्स, तो लॉयर्स के लिए ये सिंपल हो जाता है कि ये देखना कि भाई बॉन्ड का फॉर्म क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए अच्छा होता है. सो स्टाउट्स जुडिशियल डिक्शनरी जो है वो एक डेफिनेशन देती है बेल की. वो कहती है a man is taken or arrested when a man is taken or arrested for felony or suspicion of felony or indication of felony or any such case so that he is restrained of his liberty. इसका मतलब है कि जब उस पर ऑफेंस का चार्ज लगता है तो उसकी लिबर्टी रिस्ट्रेंट हो जाती है, क्योंकि अब वो अरेस्ट होगा या जेल भी जा सकता है. और वो ऐसी फेलनी है विच इज बाय लॉ बेलेबल ऑफेंस. then in that situation such person can be delivered to a surety and sureties are bound for him to the kings. मतलब ब्रिटेन में श्योरिटीज जो थे वो अपनी ड्यूटी वो करते थे स्टेट को, और यूके में किंग वाज सिनोनिमस टू द स्टेट. ऑलराइट. और जब श्योरिटी बॉन्ड रिलीज कर देते थे then they were said to be released on bail. तो जिम्मेदारी स्टाउट्स लॉ डिक्शनरी, वैसे जो इंग्लिश जो स्टाउट्स जुडिशियल डिक्शनरी ने यूज की है, which it is tough for the judicial aspirants to understand, but मैं आपको सिंप्लीफाई करके ही वो बता रहा हूँ. तो ऐसे केस में क्या होता था कि when the surety is used to release them on bail, मतलब surety used to release them on bond and they used to swear their liability to the king, or which was the synonymous of the state at that time. तो only in that situation जिस person के लिए वो surety बने हैं he is said to be released on bail, और उसको conditional liberty पे छोड़ा जाता था subject to the bail conditions, जो भी condition है बॉन्ड पे जो लिखी हुई हैं जितनी भी हों. और साथ में ये कि जब भी योर प्रेजेंस इज समन्ड बिफोर द कोर्ट यू हैव टू अपीयर. नाउ जो कि अब मैंने आपको समझा दिया है, तो आई जस्ट रीड एग्जैक्टली व्हाट द स्टाउट्स लॉ डिक्शनरी एक्चुअली सेज. इट सेज व्हेन अ मैन इज टेकन और अरेस्टेड फॉर felony, suspicion of felony, indicated of felony or any such case so that he is restrained of his liberty and being by law bailable, offends surety to those which have authority to bail him, which sureties are bound for him to the kings, use in a certain sums of money or body for body, that he shall appear before justice of goel delivery at the next sessions, etc. Then upon the bonds of these sureties, as is aforesaid, he is bailed, that is to say, set at liberty until the day appointed for his appearance. Now अगर आपकी definition नहीं समझ में आई तो मैंने जो इससे पहले इस डेफिनेशन पे आने से पहले इसी का सिंपल ट्रांसलेशन किया था. दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट रीडिंग दिस डेफिनेशन एज इट इज़. पर ये डेफिनेशन हमेशा जजमेंट में बहुत कोट होती है, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने पहले इसका एसेंस आपको बता दिया. नाउ आपको दो तीन चीज़ें समझ में आ गई कि जो बेल है वो एक कंडीशनल लिबर्टी एक तो होती है, दूसरी ये होता है कि इसमें श्योरिटी भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है, और ये डबटेल करता है दो राइट्स के बीच. मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ. मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके खिलाफ ऑफेंस का एलिगेशन लग गया है. ठीक है, उसके ऊपर एक एलिगेशन लग गया है
कि लेट अस सपोज ही हैज कमिटेड अ पेटी थेफ्ट, चोरी की है। अब गरीब आदमी के पास ना तो ना श्योरिटी है ना बॉन्ड है, लेट अस सपोज। अब वो अरेस्ट हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन लगता है? मैजिस्ट्रेट तो उसको सीधे जेल में डाल देगा। अगर बेल का लॉ मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, तो जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो सेटल्ड कैनन है वो क्या है कि अ पर्सन इज assumed टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब ये आदमी, अब ट्रायल, हम लोग जानते हैं ट्रायल यूजुअली कितने टाइम तक चलता है। मान लीजिए 5 साल चला, और मान लीजिए जो थेफ्ट उसने की है उसकी मैक्सिमम सजा 3 साल है, तो ट्रायल 5 साल चला और बेल का लॉ लेट सपोज नहीं है, ना होने की वजह से वो जेल में रहा फॉर 5 years। अगर इसका मतलब ये है कि अगर वो एक्चुअली में कन्विक्ट भी हो जाता ना थेफ्ट के लिए कन्विक्ट भी हो जाता, तो उसको 3 साल, 2 साल कम की सजा मिलती। पर वो सिर्फ इस बात से, क्योंकि बेल का लॉ नहीं एग्जिस्ट करता फॉर हमारे इलस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर मेरली हैविंग अ चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। उसको पनिशमेंट सिर्फ इस बात के लिए मिल रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक एलिगेशन लग गया है। और अगर ऐसा ही नॉर्म अलाउ हुआ तो भाई किस बात का इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? आपको अगर एलिगेशन पे ही जेल में डाल दिया जाएगा और कोर्ट 10 साल लेगा आपको जजमेंट देने में, और तब तक आपको जेल में रखा जाएगा, तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का फायदा ही क्या हुआ? आप इसको कुछ भी कर दो तो इसके लिए मेयर लिप सर्विस नहीं चलती है। यू हैव टू एक्चुअली शो इट बाय जुडिशियल कंडक्ट। ये जुडिशरी पे जिम्मेदारी है to actually not only give a lip service to the doctrine of innocent until proven guilty, but actually show it in your conduct. The law of bail, क्योंकि India is also signatory to the UN Declaration of Human Rights, उसको human rights की कैटेगरी के स्कोप में लाया गया, तो it has a very high pedestal। ठीक है, so always keep that in mind। It continues to be understood as a right for assertion of freedom against the state imposed restraints। ये एक assertion of freedom है against the right, it is an assertion of freedom against the state imposed restrictions। और क्योंकि India is also signatory to the UN Declaration of Human Rights, तो वो जो law of bail है, it is now put at a very high pedestal than any other law as far as the fundamental freedoms are concerned। Law of bail आपके आर्टिकल 21 से भी लिंक होता है, जो क्या कहता है? नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ इन दिस सिचुएशन एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ merely because a statutory provision is there now I can deprive of anyone of his liberty। नहीं, it should be just, it should be fair, it should be reasonable। वो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मैटर है, बट इन शॉर्ट आई टेल यू कि बेल के बारे में आप जब भी लिखेंगे या जब भी आर्ग्यू करेंगे तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू लिंक इट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इनफैक्ट यू कैन सी थ्रू आउट द स्कीम ऑफ CRPC बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक होते हैं। रिमांड का, अरेस्ट का, आर्टिकल 22, 21, 19, 14, ये आप थ्रू आउट देखते रहेंगे CRPC से कि ये होता आ रहा है, लिंकिंग होती आ रही है। सो ऑलवेज कीप योर माइंड वेरी फर्टाइल व्हेन इट कम्स टू इंटरलिंकिंग बिटवीन द स्टैट्यूट। अब खास तौर से जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, दे आर एक्चुअली एबल टू लिंक प्रॉपरली a law of statute with the constitutional provision। All right, so I'll tell you what is the object of bail। The object of bail is merely to secure the appearance of the accused person at the trial। यही एक ऑब्जेक्ट है। इसका ना कोई प्यूनिटिव ऑब्जेक्ट है ना कोई प्रिवेंटिव ऑब्जेक्ट है। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिश करने का ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ना इसका कोई प्रिवेंटिव ऑब्जेक्ट होता है कि आप किसी ऑफेंस को होने से रोकें। नहीं, बेल का सिर्फ एक पर्पस होता है कि द अक्यूज्ड पर्सन विल अपीयर बिफोर कोर्ट
to answer the charge that has been leveled against him. Deprivation of liberty is itself a punishment. Unless the law of bail is there, deprivation of liberty will be considered itself a punishment. Okay, so it can be required. The bail law is used to require that an accused person will stand trial before court when called upon. The law of bail ना हो और merely on a charge कोई जेल चला जाए तो innocent until proven guilty का कैनन वायलेट हो गया, आर्टिकल 21 भी वायलेट हो गया. कोई भी आपके खिलाफ फॉर्स चार्ज कर देगा. मान लीजिए आपने कोई प्रोटेस्ट कर दिया और प्रोटेस्ट आपका लॉफुल था. यू हैव द लॉफुल प्रोटेस्ट, यू आर कंडक्टिंग इन अ वेरी लॉफुल मैनर. रूलिंग गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, उसने आप पे एक फॉल्स चार्ज लगाया और आप जेल में हैं. हालांकि आप गलत नहीं हैं, आप जुडिशरी लगे 10 साल उसको डिसाइड करने में और एंड में उसने आपको क्विटल दे दिया. तो कंपनसेशन वो आपको चाहे जितने भी दे दे, लेकिन जो 10 साल आपके बर्बाद हुए क्या वो कभी वापस आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते. सो दिस इज द थिंग, एवरीथिंग कैन बी कंपनसेटेड इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट टाइम. Everything is capable of being compensated in this world except time. टाइम का कभी कोई compensation नहीं हो सकता. जो टाइम आप आज है आपके पास, वो टाइम कल नहीं होगा आपके पास. You cannot go back in time and live those situations again. Alright, so this is why it should be understood while the personal liberty and bail law are at a very high pedestal. बेल के लिए मुझे ये सब आपको बताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेल समझने के लिए you need to understand its jurisprudence first. When you have understood its jurisprudence, then you will be able to properly see whether in a given set of facts bail should be granted or not granted. अगर बेल को सिंपली अगर ख़त्म कर देना हो तो 6-7 केस लॉ की गाइडलाइन बता के भी ख़त्म किया जा सकता है. बट ऐसे केस में ये नहीं समझ में आएगा कि किसी गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स पे बेल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं. दैट इज़ व्हाई यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्ट एंड देन द गाइडलाइंस. इस बेसिस पे आपको ग्रांट करना चाहिए. ठीक है. सो आई नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, that the courts owe actually more than verbal respect to the principle that the punishment actually begins after conviction and that every man is deemed to be innocent until duly tried and duly found guilty. So the word here is duly tried and duly found guilty. Unless a person is found guilty, the law frowns upon any conduct which punishes a man before he is actually convicted by a due process inside a court of law. All right. That is why the law of bail has such an importance. Now, I'll come to the next point. From time to time, necessity demands that some unconvicted person should be held in custody. मान लीजिए वो habitual offender है, बहुत बड़ा criminal है, तो necessity कभी कभी डिमांड करती है सोसाइटी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कि उसको कस्टडी में रखा जाए, उसको बेल पे ना रिलीज किया जाए. तो necessity has to be an operative test here. यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि what kind of antecedents that person has, वो किस नेचर का पर्सन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हरकतें क्या हैं, उसने किस लेवल का ऑफेंस किया. ये कुछ प्राइमरी कंसिडरेशन पे हो गए. फॉर टुडे, आज के लेक्चर के लिए विल ओनली डील विद द बेलेबल ऑफेंसेस. और बेलेबल ऑफेंस में ही अपने इतने नुआंस आ जाएंगे कि you'll see why this topic is very important. Then we'll move on to नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. और आज के लिए बेलेबल ही चलेगा. सो नेसेसिटी में कभी कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप बेल पे नहीं रिलीज कर सकते हो, तो वहाँ पे नेसेसिटी ही ऑपरेटिव टेस्ट बनेगा. मान लीजिए कोई बहुत भयानक आतंकवादी है, तो अगर हम बेल इज़ द रूल एंड रिफ्यूजल एंड एक्सेप्शन मान लें और उसे बेल पे आज़ाद कर दिया, वो फिर टेररिज्म की एक्ट्स में इंगेज करने लगा, तो या कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है या हैबिचुअल ऑफेंडर है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. तो ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे क्वेश्चन आंसर होगा और नेसेसिटी पे देखा जाएगा कि बेल ऐसे केस में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. सो नेसेसिटी इज कंसिडर्ड एन ऑपरेटिव टेस्ट. नाउ इन दिस कंट्री, दैट इज इंडिया, it would be very contrary to the concept of personal liberty under Article 21 to say that the person can be held in detention without actually being convicted by a court of law and be left at the mercy of the trial court and for it to take as much time as it wants and then come to a conclusion
that whether the person was guilty or not, and let's suppose he acquitted the person, then the years lost of the accused person cannot be recovered by any amount of compensation. So, prevention is not the object of bail. Prevention of a crime is not actually the object of bail. The object of bail is neither the substantive punitive content. The object of bail is generally to make sure that the accused is presented before the court of law to answer the charge which has been leveled against him. There is a definition in a case law, and that is, I'll provide you with the case law. That is Motiram versus State of Madhya Pradesh. The bail has to dovetail. You have to write this in the exam. इसके number मिलते हैं. Bail has to dovetail between two conflicting demands. At one side, it requires the society from being shielded from hazards of being exposed to the misadventures of the accused person, and on the other side, the fundamental canon of the criminal jurisprudence. A person is presumed to be innocent until proven guilty. Hence, bail blends and balances the two apparently conflicting claims: freedom of an individual and the interest of justice. A general rule is grant of bail is the norm and the refusal is an exception. While considering an application of bail, detailed discussion of evidence and elaborate documentation of merits is to be generally avoided. This requirement stems from the desirability that no party should have the impression that his case has been prejudged. Existence of a prima facie case is the only criteria that should be considered by the judge. Elaborate analysis or exhaustive exploration of merits is not required. Where the offense is of a serious nature, then the question has to grant of bail has to be decided keeping in view the nature and seriousness of the offense, character of the evidence, and amongst other things the larger public interest. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से. Let us suppose a poor man has been accused of a petty offense of theft. Bread चुराई है उसने in an open space. Let us suppose कहीं पड़ी थी उसने चुरा ली. And let us suppose the charge has been leveled against him is of section 379 of the IPC, that is punishment for theft. Now the trial continues for 5 years and the person, merely because he is poor, is unable to apply for bail. Hence, he has to spend 5 years in jail for a very petty offense. And the magistrate, even though he convicts such person, decides that looking at the offense that such person has committed, that such poor person has committed, I don't think I will sentence him. Always keep in mind that conviction and sentences are two different things. Conviction का मतलब ये है कि आप दोषी हो. सेंटेंस बताता है कि आपको सजा क्या मिलेगी. ऑलराइट, तो हो सकता है मैजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर दे, और इनफैक्ट ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट को सिर्फ कन्विक्ट करना चाहिए, उसको सजा नहीं देनी चाहिए. तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि मैं उसको क्या कहते हैं, सिर्फ कन्विक्ट कर रहा हूँ, सजा नहीं दे रहा. लेकिन प्री ट्रायल डिटेंशन जो उसके 5 साल की हुई, उसी ने उसको सफिशिएंट सजा दे दी. और दूसरी बात ये कि जो मैजिस्ट्रेट ने जो अपना जजमेंट दिया, जितना उसने टाइम लगाया, तो इनोसेंट एंटिल प्रूवन गिल्टी का भी उसमें वायलेशन हुआ. वो तो प्रूवन गिल्टी तक का वेट करना था ना, तो वो तो किया नहीं गया. वो तो सीधे चार्ज लगा, अरेस्ट हुआ, बेल नहीं ग्रांट की, सीधे इनकार्सरेशन में वो चला गया और 5 साल उसने अपने लाइफ के वेस्ट कर दिए. सेंटेंस कितना आया? सेंटेंस 1 दिन का भी नहीं आया. और उसके बाद भी even after that situation the court says that we have not actually sentenced him. तो सेंटेंस तो वही हो गया ना जो प्री ट्रायल डिटेंशन थी उसकी. तो दिस इज व्हाई द लॉ ऑफ बेल इज इम्पोर्टेंट. बट अब मैं फैक्ट्स को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पुअर मैन को लेके सबको सिंपैथी होती है. Now let us suppose there is a hardcore criminal and he has actually been involved in number of murders.
Actually, there are 24 murder cases that are on his name. अब याद रखिएगा, ग्रांट ऑफ बेल इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन. अब देखिएगा कैसे डॉक्ट्रिन अपने सर के ऊपर आ जाती है. इट जस्ट टर्न्स अपसाइड डाउन depending on the fact and circumstances of the case. ध्यान रखिएगा, criminal law is all about fact and circumstances. So now that hardcore criminal is arrested, he has the money, he has the lawyer, he has the means, he has the sureties. He says, his lawyer argues inside the courtroom that grant of bail is a rule, refusal is an exception. My client will actually not tamper with it. Let us suppose he is giving these sanctimonious lectures that my client will actually comply with the bail conditions. He should be released on bail. He's actually innocent. The police is vindictive against him. The state is after him merely because he's happened to protest. Because these days these kinds of arguments are also being thrown, so I also included that into my illustration. So here court will see the fact and circumstances. The court will see that you have 24 murder cases lodged against you, and your general disposition, your general reputation in the society is that of a hardcore criminal. The material that has been placed before me also also shows that when I consider this material on a prima facie basis, not a detailed analysis, only on the prima facie level, it shows that yes, you may be involved in these crimes. Here, your case falls into what? Here, the case of this habitual criminal offender falls into what? It falls into the exception. Here, the bail has to be rejected. So, in the former example, where the poor man who actually stole bread, he did commit theft. I used the example of theft because I wanted to show even if he has committed a crime, but a crime is of a very petty nature, then unless the sentence of the conviction has been given, he should not be unduly incarcerated. He should properly be released on bail. But in my second illustration, where the person is actually a hardcore criminal offender and he has the general reputation of being a criminal offender, the evidence placed on record prima facie shows that he has the involvement in the crime as has been alleged, and there is also a risk of him tampering with the evidence. Then in that situation, the bail ought to be rejected. All right, these were the general few points. Up, let me tell you a bit about historical perspective, because historical perspective is important because the Supreme Court relies upon it in order to grant bail. In the Hussaina Khatun guidelines, the Supreme Court had to actually see all the perspective, objects, and several other sociological matters, and then come to a conclusion why bail is necessary. So always keep in mind that the law is not read in a void. When you're framing an argument or writing an answer, you have to include the historical, sociological, objective, legal, and historical, and several other perspective. It can be scientific, psychological, etc. So always keep your answer very holistic for the purpose of examination and for the purpose of argument itself. So the Supreme Court says that the concept of bail has a long history and deep roots in English and American law. In medieval England, the custom grew out of the need to free the untried prisoners from disease-ridden jails while they were waiting for delayed trials conducted by the traveling justices. Prisoners were bailed or delivered to the reputable third parties of their own choosing, who accepted the responsibility for assuring their appearance at trial. If the accused did not appeal, his bailer would stand trial in his place. ये आपका पुराने टाइम में होता था. Eventually, it became the practice for the property owners who accepted responsibility for the accused person to forfeit money when their charges failed to appear for trial. तो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में ये होता था कि अगर वो नहीं आया अक्यूज पर्सन तो श्योरिटी उसकी जगह पर ट्रायल झेलेगा. फिर बाद में थोड़ा इसको लिबरलाइज किया गया और क्या कर दिया गया
कि आप एक मनी, क्या कहते हैं, the condition of the bond will have money, and if the person who against whom the charge has been leveled, that is the accused person, he does not appear, then that money will be forfeited in accordance with the terms of the bond. So from this grew the modern practice of posting a money bond. इसी से modern practice शुरू हुई कि आपको money bond या कोई asset pledge करना पड़ता है कोर्ट के सामने. From this grew the modern practice of posting a money bond through a commercial bondsman who receives cash premium for his service and usually demands some collateral as well. In the event of non-appearance, the bond is forfeited after grace period of a number of days during which the bondsman may produce the accused in court. तो ये simple चीज था, there is nothing much complex in it. अब मोतीराम versus state of MP is a locus classicus, so that is why I am telling you. The consequences of pre-trial detention are grave. Defendants are presumed to be innocent, are subject to the psychological and physical deprivations of jail life, usually under more onerous conditions than that are imposed on the convicted defendants. The Supreme Court, ये जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जनरली जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेप्रिवेशन जो अंडर ट्रायल का होता है वो कन्विक्टेड डिफेंडेंट से भी बुरा होता है. The jail defendant loses his job and he is also prevented from contributing to the preparation of his defense. Equally important, the burden of his detention frequently falls heavily on the innocent members of his family. So this judgment is actually beautiful when it compares the sociological perspective, the historical perspective, the political and the legal perspective. That is why Krishna Iyer is actually hailed as one of the brightest beacons of justice in Indian jurisprudence. उन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या ले डाउन किया इन लॉ का कि बेल जब आप रिफ्यूज़ करते हैं किसी की तो उसकी जॉब भी जाती है, वो बहुत बुरी कंडीशन में रहता है. कैनन्स ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का तो वॉयलेशन होता है, लाइफ और लिबर्टी का तो वॉयलेशन होता ही है विदाउट ट्रायल, बट ये भी होता है कि वो अपने डिफेंस को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता क्योंकि आपको लॉयर अफोर्ड करना पड़ेगा और लॉयर को अफोर्ड करने के लिए यू नीड टू हैव मनी. तो जब आपकी जॉब चली गई तो मनी कहाँ से होगा. और ऑफेंड क्या होता है कि अगर ये व्यक्ति सोल ब्रेड अर्नर हुआ तो ऐसी सिचुएशन में तो उसका इनकार्सरेशन तो फैमिली पे भी फॉल करेगा, तो फैमिली को भी पनिशमेंट मिलता है बिकॉज उनका तो ब्रेड अर्नर जेल में चला गया ना, तो फैमिली इज ऑल्सो बीइंग पनिश्ड फॉर दैट. दिस इज वाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस जजमेंट एक्चुअली हेल्ड दैट एक बेल ग्रांट ऑफ बेल शुड बी द रूल एंड रिफ्यूजल शुड बी एन एक्सेप्शन. और दूसरा कि अनड्यूली लार्ज अमाउंट नहीं क्लेम करना चाहिए बेल के लिए. ठीक है, बेल के लिए यू शुडंट कोर्ट जो मनी का सम जो आप स्वेयर करते हैं कोर्ट के सामने, कहते हैं यू विल फॉरफिट इन द केस अक्यूज डज नॉट अपीयर in the case of his non appearance inside the court. If the accused does not appear, then in that situation the money that has been sworn should not be excessive. It should be very reasonable. The limits of the money that has been sworn before court should be रीजनेबल नॉट एक्सेसिव. मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उस पर बेल बॉन्ड पे आपने टर्म क्या लगा दिया, 10 लाख का श्योरिटी भरो या 10 बेल बॉन्ड में 10 लाख का मनी प्लेज करो या कोई ऐसा अमाउंट प्लेज करो या कोई ऐसा एसेट प्लेज करो जो 10 लाख के बराबर हो. इन दैट सिचुएशन हाउ विल अ पुअर मैन अफोर्ड लिबर्टी? वो तो बेल पे आज़ाद ही नहीं हो पाएगा कभी. सो दैट इज़ वाई द कोर्ट सेड द अमाउंट फिक्स्ड शुड बी रीजनेबल. आप कोई मिस्त्री आपके सामने आया है, मेसन, एंड आपने बोला हाँ यू आर अ जज, लेट सपोज यू आर अ जज एंड द मेसन हैज़ बीन ब्रॉट बिफोर यू एंड यू से कि ठीक है मैं आपको बेल पे रिहा कर दूंगा, पर जो मनी आपको स्वेयर करना होगा, द मनी दैट यू हैव टू प्लेज बिफोर मी शुड बी 10 lakhs. From where will he afford it? He won't be able to afford it. And what will be the consequence of not being able to execute bail bonds? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो जेल जाएगा, और जेल जाएगा तो अभी जितनी चीज़ें मैंने बताई
कि जॉब जाएगी, फिजिकल डेप्रिवेशन झेलेगा, साइकोलॉजिकल डेप्रिवेशन झेलेगा, लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन होगा इवन विदाउट कन्विक्शन, साथ में उसकी डिटेंशन का, इफ इज अ होल ब्रेड अर्नर तो उसका जो फॉल आउट होगा वो फैमिली इनोसेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली बेयर करेगा, ये सारी चीज़ें साथ में चलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट हैज सेड दैट द अमाउंट व्हिच इज ऑन बिफोर द कोर्ट शुड बी रीजनेबल, द अमाउंट फिक्स्ड शुड बी रीजनेबल, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वो इतना नहीं होना चाहिए कि अब जो बेल का राइट है उसी को डिफीट कर दे। ऑल राइट, सो इट शुड बी रीजनेबल नॉट एक्सेसिव, लेकिन इट हैज़ टू बी डिटरमाइंड ऑन व्हाट बेसिस, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्राउन अपॉन भी किया है ये जो पैसा डिमांड करने वाली जो प्रैक्टिस है इंडिया में, इस पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस डॉक्ट्रिन का फॉर डिमांडिंग मनी। और सिर्फ इस केस में नहीं, ये हुसैनारा खातून में भी हुआ है। और इन सब का बेस क्या बना था, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया था? एक्चुअली एक मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट हुआ था यूएसए में। इसको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ ने एक मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट शुरू किया था। इट वाज कंडक्टेड बाय वेरा फाउंडेशन एंड उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल था। It found that 65% of all felony defendants interviewed could be recommended for release without bail. उनको रिलीज करवाने के लिए रिकमेंडेशन दिया जा सकता था कि बिना बेल के भी उनको रिलीज किया जा सकता है। Of 2,195 defendants released in this way, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू 2000 ऑलमोस्ट 2200 डिफेंडेंट्स वर रिलीज्ड बिना बेल के। और देखा गया कि लेस देन 1% फेल टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब 99% से ज़्यादा लोग जब कोर्ट ने बुलाया तो बिना बेल के अपीयर हुए। इन शॉर्ट, risk of financial loss is insubstantial deterrent to flight for a large number of defendants. For them, the primary consideration is community which they have to live with, and they are sufficient, and that is sufficient consideration for them to bring them before court. मतलब ये जो 99% थे जिनको बिना बेल के रिलीज किया गया मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट में, ये इनके लिए सिर्फ वो कम्युनिटी कंसिडरेशन की, यार हमें एक सोसाइटी में रहना है एंड हमें जाना चाहिए, ये अपने गुडविल पे ही पहुंच गए थे। और सिर्फ 1% से कम केसेस में देखा गया कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वायलेशन किया जो who did not subscribe to this community norm, they jumped their conditions of release. तो इस प्रोजेक्ट ने क्या इस मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट ने क्या प्रूव किया? It simply proved this, that money is not at all the criteria. Financial loss is an insubstantial deterrent. जब 99% जो बिना मनी के बेल पे बिना मनी के रिलीज हुआ है, बेल उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। उन्होंने बोला कि ना बेल रिलीज करो ना बॉन्ड रिलीज करो, बस एक कंडीशन पे आपको रिलीज किया जा रहा है कि आप जब भी कोर्ट बुलाएगा आप आओगे। एंड दे अपीयर्ड, 99% अपीयर्ड। तो ये जो प्रैक्टिस है जो इंडियन कोर्ट्स में है, और इनफैक्ट कई कोर्ट्स में साउथ एशिया, चाइना, जापान, बहुत कॉमनवेल्थ नेशंस में प्रैक्टिस है कि मनी के थ्रू उसको वो जो बेल बॉन्ड्स एग्जीक्यूट करने के लिए मनी ज़रूरी है। और ये कोर्ट अज्यूम, ये लेजिस्लेचर ये अज्यूम करके चलता है कि अगर अक्यूज्ड मनी को स्वेयर करेगा कोर्ट के सामने और ये उसके ऊपर थ्रेट रहेगा कि अगर वो टाइम पे नहीं आया तो मनी विल बी फॉरफिटेड टू द कोर्ट, तो ये अपने आप में एक डेटरेंट होगा। ये बहुत ही गलत धारणा है, इट इज़ रॉन्ग। दिस फाइनेंशियल लॉस बीइंग अ डेटरेंट इज़ अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन जिस पे कई साउथ एशियंस और कॉमनवेल्थ नेशंस के लेजिस्लेचर से लाई करते हैं। मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट proved it to be wrong. That is why I'm mentioning the Manhattan Bail Project. अब मैं कुछ बातें आगे भी बताता हूँ। The bail system, as we see it administered in the criminal courts day to day, is extremely unsatisfactory and it needs a drastic change.
In the first place, it is virtually impossible to translate risk of non-appearance by the accused in precise monetary terms. So the first thing is कि ये तो कंपैरिजन करने में भी बड़ा मुश्किल होगा कि जो उसका नॉन अपीयरेंस है उसको मॉनेटरी वैल्यू कैसे दें. And even its basic premise that the risk of financial loss is necessary to prevent the accused from freeing is of doubtful validity. There are several considerations which deter an accused from running away from justice, and the risk of financial loss is only one of them, and not too major one. The experience of bail projects in United States, such as Manhattan Bail Project and DC Bail Project, shows that even without monetary bail, it has been possible to secure presence of the accused at the trial in large number of cases. कई बार मान लीजिए कि किसी का फादर है जिस पे एक फॉल्स एलिगेशन हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए अपेयर करते हैं. बहुत मेजॉरिटी ऑफ द लोग सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए कोर्ट में अपेयर कर जाते हैं, मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए नहीं, इस बात के लिए नहीं कि उनको लगता है कि उनका मनी फॉरफिट हो जाएगा. मेजॉरिटी अपेयर्स बिकॉज दे थिंक दैट देयर रेपुटेशन इज एट स्टेक. दैट इज़ वाई दे अपेयर, एंड मेजॉरिटी एक्चुअली फॉलोज द लॉ एज इट्स लेड डाउन, और ये बेल प्रोजेक्ट ने प्रूव किया है. और ये जो मॉनेटरी वैल्यू का कंसेप्ट है बेल जुरिस्प्रूडेंस में, इट इज़ वेरी फंडामेंटली फ्लॉड. मोरओवर, मूविंग फर्दर, द बेल सिस्टम causes discrimination against the poor, since poor would not be able to furnish bail on account of their poverty, while wealthier persons otherwise similarly situated for the same offense would be able to secure their freedom because they can afford to furnish bail. एक गरीब मजदूर तो नहीं कर सकता 10,000 का बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट, पर एक बिजनेसमैन के लिए 10,000 का बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है. ये क्या आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? आई लीव इट अप टू यू. आप लोग मुझे बताइएगा हुआ या नहीं हुआ. This discrimination arises even if the amount of bail fixed by the magistrate is not high. For a large majority of those who are brought before courts in criminal cases are so poor that they would find it practically very difficult to furnish bail even for a small amount. This problem of system has been even talked about in our law reports, that the evil of the bail system is that either the poor accused has to fall back on professional sureties for providing bail or suffer pre-trial detention. एक हमारा एक और evil इस monetary system की वजह से आ गया प्रोफेशनल श्योरिटीज़ का है. प्रोफेशनल श्योरिटीज़ क्या होते हैं? ये सबके लिए श्योरिटीज़ बन जाते हैं और फॉर अ कंसिडरेशन. तो श्योरिटीज़ तो आपको गुड फेथ में बनना चाहिए, पैसे के लिए बनते हैं. तो अगर आपको आज़ाद होना है तो प्रोफेशनल श्योरिटीज़ आपको चाहिए होंगे, और प्रोफेशनल श्योरिटीज़ आपके पास नहीं है एंड यू हैपन टू बी पुअर, देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू यू इज जेल. ऑलराइट, both of these consequences are fraught with great hardships to the poor. In one case, the poor accused is fleeced of his money by touts and professional sureties, and sometimes has to even incur debts to make payment for securing his release. कभी कभी तो उसे कर्ज भी लेना पड़ता है अपने आप को आज़ाद कराने के लिए. What is your duty as a lawyer and as a judge? To make sure that these problems do not occur inside a courtroom. If you are properly aware that this is happening, that the accused is very poor, then what can you do? You can also plead to the magistrate to release him on his personal bond, either with or without sureties, and not demand money, or if at all he has to demand money, then it should be such a small sum that the accused, who is a poor person in a given situation, can afford that amount. All right, so you have to see all that, and as a judicial magistrate, if you are an aspiring judge, you have to see this all of this without an application by the lawyer. As the lawyer can always give you an application and bring a matter before you and tell you that such is the situation of this under trial prisoner, he is poor and this is why he is not able to afford bail, and the offenses that has been
alleged to be committed by him are very of a very petty nature. So he should be released on his personal bond rather than on a bail bond, that too if possible without sureties. ओके, सो ये सारे सिचुएशन को मैजिस्ट्रेट में ध्यान में रखना चाहिए और लॉयर्स को प्रॉपरली ये मैटर्स प्लीड करने चाहिए बिफोर द ट्रायल कोर्ट्स. सो हाउ इज दैट द पर्पस इज मेट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, that rich defendants can afford to pay bail, he can afford to buy his freedom, but the poor defendants cannot pay the price, hence he languishes in jail for weeks, months, perhaps even years. He does not stay in jail because he is guilty. He does not stay in jail because a sentence has been passed against him. He does not stay in jail because he is more likely to flee before trial. The poor man merely stays in jail for one reason and one reason alone, and that is that he is poor. That's all. So, I think that the historical perspective and the sociological perspective and the law reports and the another perspectives have been dealt with. So right now I can come under section 436. But before that, I'll tell you that CRPC envisages two kinds of personal bonds. One personal bond is furnished by his own, by one or more sureties. It means that a third party will be held responsible for the obligations undertaken by the accused, and he'll have to pay the amount in the case of breach of bail is committed by the accused. And then there is a bond that is without sureties. In this case, a judge may allow the release of an accused person on bail by taking a bond that he or she shall appear on future at the court dates as are decided by the court. Here, the accused doesn't have to post bail, but he will forfeit the amount in the bond if he fails to appear in the court. So, ध्यान रखिएगा before I begin section 436 that you have to read it with form number 45 of the second schedule of the CRPC. Alright. So now I'll deal with first the bailable offences. Now what are the bailable offences? In bailable offences, the bail is right. In bailable offences, the bail is right and has been put to the pedestal of even indefeasible right in the words of Supreme Court. So, 436 says, in what cases bail is to be taken? When a person other than the person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without a warrant by a police officer, by the officer in charge of police station, or appears or is brought before the court and is prepared at any time while in custody of such officer or at any stage of the proceeding before court to give bail, such person shall be released on bail, provided that such officer or court, if he thinks fit, may and shall, if such person is indigent and unable to furnish surety, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for appearance as hereinafter provided. तो देखिए दो तीन चीजें मार्क कर लीजिएगा. ये बेल 436 का सबसेक्शन 1 बेलेबल ऑफेंसेस पे अप्लाई करता है और जब ऑफेंस बेलेबल है तो अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल. शैल वर्ड का यूज हुआ है, इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन. और अगर क्या कहते हैं वो श्योरिटी नहीं फर्निश कर पाता बेलेबल ऑफेंस में, तो जो जज है वो उसके विदाउट श्योरिटी वाले बॉन्ड को के एग्जीक्यूशन पे उसको डिस्चार्ज कर सकता है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज्ड अग्रीज टू अपीयर एज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. सो एक्सप्लेनेशन इसकी एक है 436 में, where a person is unable to give bail within a week of the date of his arrest, it shall be sufficient ground for the officer or the court to presume that he is an indigent person for the purpose of this proviso. Provided further that nothing in this section
shall be deemed to affect the provision of subsection 3 of section 116 or section 466A. तो 466A जो है 446A sorry shall provided further then nothing in this section shall be deemed to affect the provision of subsection 3 of section 116 or 446A of the CRPC. तो 446A of the CRPC जो है वो कैंसलेशन ऑफ बॉल और बेल बॉन्ड की बात करता है. वो आगे हम लोग इस पे आएंगे. फॉर राइट नाउ आवर कंसर्न शुड बी कि हाउ कैन वी गेट एन अक्यूज्ड पर्सन रिलीज्ड ऑन अ बेलेबल ऑफेंस. तो बेलेबल ऑफेंस में रिलीज राइट होता है. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है 436 का? Notwithstanding anything contained in subsection 1, where a person has failed to comply with the conditions of a bail bond as regards to time and place of attendance, जब वो नहीं आया उस टाइम पे जब कोर्ट ने जिस टाइम और प्लेस को फिक्स किया है जहाँ पे उसको आना था, then कोर्ट में refused to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody, and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof under section 446 of the CRPC. All right. तो 446A कैंसलेशन है और 446 इज एक्चुअली द फोर फीचर ऑफ बॉन्ड. तो उसमें वो क्या कर सकता है कि भाई जो श्योरिटी, अगर मान लीजिए बॉन्ड बिलेबल बॉन्ड श्योरिटी के साथ एग्जीक्यूट किया गया तो श्योरिटी को बुलाएगा और बोलेगा कि वो जो सम आपने प्लेज किया था इट इज नॉट टू बी फॉरफिटेड, और जो भी कॉन्सिक्वेंस उसके बाद आते हैं दैट विल बिफॉल ऑन श्योरिटी. ऑलराइट. उतने सिवियर नहीं होते इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, पर इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इट कैन बी वेरी सिवियर. सो गोइंग फर्दर कि इन जनरल स्टेट को, क्या स्टेट ऐसा ऑब्जेक्शन ले सकता है कि एप्लीकेंट शुड बी केप्ट इन कस्टडी for a long trial in a bailable offense while grant of bail की hearing हो रही है? क्या state ऐसा objection ले सकता है? So the answer is simply no, because in a bailable offense, first of all, it is an indefeasible right of the accused person to be released on bail provided he complies with the conditions. State cannot be heard to say that the application should be kept in custody without trial for a long time, and yet at the same time not provide adequate machinery for dispensing justice quickly. It must be borne in mind that the speedy trial is also a fundamental right under Article 21. The right to the speedy trial was first mentioned in the landmark document of the English law, that is the Magna Carta. Article 21 declares, Article 21 of the Constitution of India, that no person shall be deprived of his life or liberty except according to the procedure laid down by law. Justice Krishna Iyer, while dealing with the bail petitions in Babu Singh versus State of UP, also remarked, our justice system, even in grave cases, suffers from slow motion syndrome, which is lethal to the fair trial, whatever the ultimate decision might be. एक आपने पुराने लाइन बहुत बार सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी की बात हो रही है. सो गोइंग फर्दर, स्पीडी जस्टिस इज अ component of social justice. Since the community as a whole is concerned in the criminal being finally punished within a reasonable time and the innocent being absolved from the inordinate ordeal of criminal proceedings. So ये जो स्पीडी ट्रायल है ना, दोनों सिचुएशन हैंडल करता है. एक तो वो अगर व्यक्ति क्रिमिनल है तो जल्दी से उसे कन्विक्ट कर देता है, और अगर व्यक्ति पुअर है तो जल्दी से उसे एक्विट कर देता है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल that the doctrine of speedy trial must be kept in mind while releasing a person on bail.
ऑलराइट, स्पीडी ट्रायल और बेल का बहुत रिलेशन है, और आर्टिकल 21 का भी और आर्टिकल 14 का भी, दे आर वेरी वेरी मच मिक्स्ड। एक एक चीज़ और मुझे बतानी है कि व्हेन व्हेन यू आर रीडिंग बेल प्रोविजंस, तो आईपीसी में उसको सेक्शन 229A से पढ़ा जाता है कि विच प्रोवाइड्स फॉर फेलियर ऑफ अ पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, तो उसमें वो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आईपीसी का कौन से प्रोविजन से आपको बेल के चैप्टर्स रीड करना है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जिससे आईपीसी में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक सिचुएशन और होती है कोर्ट के सामने कि वो रिकॉग्निजेंस एक्सेप्ट कर ले इंस्टेड ऑफ दैट, जो प्रॉपर श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड वाली बेल होती है वो 445 में होती है। 445 में क्या प्रोवाइड किया गया है कि द कोर्ट, जो कोर्ट है, it can accept deposit instead of recognizance when any person is required by the court or officer to execute a bond or with or without sureties. Such court or officer may, except in the case of bond for good behavior, permit him to deposit a sum of money or government or promissory notes to such amount as the court or officer may think fit in lieu of executing such bond. तो bond की जगह आप मनी डिपॉजिट कर सकते हैं या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स। ये कब सबसे ज़्यादा फेवरेबल, कब किस सिचुएशन में एक्सरसाइज करना चाहिए? मान लीजिए कि ए जो है वो दिल्ली का रेसिडेंट है और क्राइम हुआ है तमिलनाडु में, और वो तमिलनाडु में किसी को जानता नहीं है, तमिलनाडु में अरेस्टेड, तमिलनाडु की कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे में ना उसको श्योरिटी के बारे में पता, वो किसको अरेंज करा पाएगा, ना श्योरिटी को बुला सकता है। तो ऐसे केस में चूंकि वो वहाँ पे किसी को नहीं जानता है, तो कोर्ट को ज़्यादा सही ये रहेगा कि रादर देन आस्किंग फॉर प्रॉपर बेल, वो डिपॉजिट उससे ले ले मनी का, रादर देन एग्जीक्यूटिंग अ बेल बॉन्ड, वो ज़्यादा होगा, चाहे वो विद हो या विदाउट श्योरिटीज हो। तो दैट इज़ बेटर, ही शुड टेक अ डिपॉजिट ऑफ अ सम, कि अगर आप नहीं है तो दिस अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड टू मी। क्योंकि देखिए अगर वो भाग गया, ही जंप्स द कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट, ऐसे केस में क्या होगा? द कोर्ट कैन ऑलवेज इशू एन अरेस्ट वारंट एंड द अरेस्ट वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। अब वो इंडिया में कहीं भी होगा, पकड़ा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपको ये डर है इंडिया के बाहर भाग गया, तो पासपोर्ट इम्पाउंड भी कर सकते हैं आप, तो अब इंडिया के बाहर भी नहीं भाग सकता वो। उसके भी नुआंसेस हैं अपने, लेकिन वो बाद में डील करेंगे। लेकिन ये इतना भी आप समझिए कि ये प्रोविजन क्यों इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसे स्टेट में उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानता है, तो वो कैसे अपनी बेल अरेंज करवाएगा? और बेल नहीं अरेंज करवाए तो जितना भी फॉल आउट जो होते हैं, जो बेल ना अरेंज करवाने के कारण होते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 21 का हो सकता है वायलेशन हो जाए, इनोसेंट अंडर प्रूवन गिल्टी का वायलेशन हो जाए, आपकी फैमिली सफ़र करे इफ़ यू हैपन टू बी अ सोल ब्रेड अर्नर, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, inability to actually have a good opportunity to defend yourself, ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे अगर आप जेल में होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़्यादा अच्छा है यू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस ऑफ विच इज़ जनरल बेल बॉन्ड्स, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ऐसी ये कोर्ट्स को ये जो प्रोविज़न है ये लिबरली एक्सरसाइज करना चाहिए उस सिचुएशन में जहाँ पे वो पाए कि जो अक्यूज्ड है वो एक्चुअली दूसरे स्टेट का रेसिडेंट है, वरना क्या होगा, उसे प्रोफेशनल श्योरिटी ढूंढने पड़ेंगे। तो फिर जो वाइसेस और प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री की, वो तो उनको बढ़ावा ही मिलेगा, वो कम थोड़ी ना होगी। सो दिस वाज द अनदर सिचुएशन दैट वन शुड डील विद और शुड बी केप्ट इन माइंड। तो कमिंग बैक टू स्पीडी ट्रायल, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन द केस ऑफ मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रिटरेट कर रहा हूँ, कोर्ट ने बोला है कि हैवी सम कैन नॉट बी डिमांडेड व्हाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ बेल, और बेलेबल ऑफेंसेस पे भी है। क्यों? अगर मान लीजिए क्योंकि बेल पे आपको एक सम क्या कहते हैं प्लेज करना पड़ता है कोर्ट के साथ, यू हैव टू प्लेज अ सम, कि अगर आप उस टाइम पे नहीं है तो वो फॉरफिट हो जाएगा। तो अगर मैजिस्ट्रेट ने मान लीजिए कोई मजदूर है, उससे बोल दिया कि हाँ बेलेबल ऑफेंस में तुम्हारा रिलीज होना राइट है,
पर मैं जो अमाउंट बेल का फिक्स कर रहा हूँ वो है 10 लाख रुपए, कहाँ से अरेंज करेगा? तो क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन अलाउ किया जा सकता है कि लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाए बाय द प्रोसीजर रूल्स? क्या मैजिस्ट्रेट ऐसा अमाउंट फिक्स कर सकता है जिससे बेल का जो बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल का राइट है वो डिफीट हो जाए? The answer is not. No, he cannot. A heavy sum cannot be demanded in fixing the amount of bail, be it is a bailable offense or a non-bailable offense. इतना heavy sum नहीं होता है. It should be reasonable, not excessive. This formulation has a bearing on the aspect of liberty, which relates to the bail jurisprudence. The victims, when the suretyship is insisted on heavy sums, are demanded by the way of bail or local bailers alone. It may harm the weaker segments of the society, like your workers, your minorities, your some poorer sections of the societies. In fact, the grant of bail can be stultified or may be made impossible if at all excessive amount has been if the excessive amount is demanded by the courts. So in that situation, Article 14 will be violated. कि आपके तो दो कैटेगरी ऑफ सिटीजन बन गए ना, हैव एंड हैव नॉट्स वाली. अमीर वाले तो एक्सेसिव अमाउंट को भी बेल एक्सेसिव अमाउंट पे भी बेल अफोर्ड कर सकते हैं, पर गरीब का क्या? दिस इज व्हाई द कोर्ट हैज फिक्स्ड दैट द हेवी सम कैन नॉट बी डिमांडेड इन दिस केस. कब श्योरिटी डिमांड करनी चाहिए और क्या सम डिमांड करना चाहिए वो तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस बताएंगे, उसको कोई कट एंड राइट फार्मूला नहीं होगा, बट हमेशा इट शुड बी रीजनेबल. इवन सो पुअर मेन एंड इंडियंस इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको लॉ में इंडिजेंट पर्सन्स कहते हैं, यंग पर्सन, विमेन एंड वीकर कैटेगरीज ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, माइनॉरिटीज, उनके केसेस में कोर्ट को एक लिबरल व्यू लेना होगा कि वो उनके अपने रिकॉग्निजेंस पे भी उनको रिलीज कर दें और एक रीजनेबल कंडीशंस पुट करके उनको रिलीज कर दें. ये सारी जो बातें हैं ये उसी जजमेंट में हेल्ड हुई हैं. इट विल शॉक one's conscience to ask a mason to furnish a surety for rupees 1 lakh. The magistrate must be given the benefit of the doubt for not fully appreciating the Constitution of India, that inside the preamble when we wrote "We the people of India," it is meant for the butcher, it's meant for the baker, it's meant for the candlestick maker, and it is meant for the bonded labor and the pavement dweller as well. So butcher, baker, candlestick, इसमें सब आते हैं. हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है. सो वेन एवर यू आर डिमांडिंग अ श्योरिटी और द मनी फॉर द बेल बॉन्ड विच हैपन्स टू बी एक्सेसिव, देन द लीगैलिटी ऑफ such an order cannot be allowed to be remained by the higher forums. ऐसा अगर कोई ऑर्डर करते हैं that it will be set aside by the higher forums, and it is patently illegal and it is patently unconstitutional to demand such an excessive amount. जैसा कि इस केस में हुआ था, एक मिस्त्री से 1 लाख रुपए. अगर कोई ट्राइबल है, ट्राइबल के पास तो इतना पैसा नहीं होता, ही रिलाइज ऑन हिज फॉरेस्ट, क्या कहते हैं, वो फॉरेस्ट पे रिलाई करता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए. अगर मान लीजिए उस पर किसी ऑफेंस का एलिगेशन लग गया और उससे मान लीजिए बेल अमाउंट, बेल का सम मान लिया 10 करोड़ का या 10 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, कहाँ से अफोर्ड करेगा? क्या हमें हमारे आप में से लोग, अगर मान लीजिए अपने आप को कभी अक्यूज की पोजीशन में रख के देखिए, तो क्या अगर हम पे कोई फॉल्स एलिगेशन लग जाए तो क्या हम अगर एक्सेसिव बेल अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं? मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने फिक्स कर दिया 5 लाख, तो हो सकता है हम में से कुछ लोग कर लें, पर क्या हम सब कर सकते हैं? इसका आंसर बहुत ही फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री के लिए तो आंसर नहीं है. बहुत कम लोगों के लिए ही इसका आंसर हाँ होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए. दैट इज़ वाई ये अमाउंट शुड बी रीजनेबल, और इक्वालिटी की डॉक्ट्रिन हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए वाइल फिक्सिंग सच अमाउंट, और लिबरल कंस्ट्रक्शन उसका तब करना चाहिए जब हम वीकर कैटेगरी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से डील कर रहे हैं. ठीक है.
अब इस पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि व्हेन टू रिलीज अ पर्सन ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड. पर्सनल बॉन्ड इज एक्चुअली बेटर टू बी रिलीज रादर देन बीइंग रिलीज ऑन अ रेगुलर बेल. रेगुलर बेल से बेटर होता है कि उसको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दें. सो अब गाइडलाइंस क्या हैं कि व्हेन टू रिलीज अ पर्सन ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड रादर देन ऑन रेगुलर बेल. तो उसके लिए सबसे पहले कोर्ट को ये कुछ चीज़ें देखनी होंगी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे, और जो भी इंफॉर्मेशन उसके सामने प्लेस की गई होगी उसके बेसिस पे कोर्ट को ये देखना है कि जो अक्यूज्ड है उसकी कम्युनिटी में रूट्स कैसी हैं, वो कैसा व्यक्ति है सोसाइटी में. ऑफिस गोअर है तो ऑफिस गोअर के लिए ना थोड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा. मजदूर है, अपना जो जीवन यापन करता है वो बहुत सिंप्लिसिटी से करता है, रेगुलरली काम करता है, उसके कोई बुरे एंटीसीडेंट्स नहीं हैं. ये सारे फैक्टर सर्कमस्टेंसेस देखेगा और उसकी रूट्स इन कम्युनिटी को देखने के बाद वो डिटरमाइन करेगा कैन सच अ पर्सन बी सेफली बी रिलीज ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड. इसके लिए जो मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट हुआ था ना, उसे एनआरआर खातून में इस चीज़ का ध्यान रखा गया था. तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया ना कि उस प्रोजेक्ट में देखा गया कि लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन पे छोड़ा गया था, बिना बेल के छोड़ा गया था, बस इस कंडीशन पे कि तुम आ जाना जब भी कोर्ट बुलाए. तो उनकी और 99% लोग सिर्फ इस बात पे ले आए थे क्योंकि उनकी रूट्स इन कम्युनिटी थी, स्ट्रॉन्ग थी, और कम्युनिटी में अपनी रेपुटेशन के लिए दे अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट. और सिर्फ 1% से भी कम लोगों ने उस कंडीशन का वायलेशन किया था. तो नॉर्म तो ये है, नॉर्म इज 99% एंड 1% इज एन एक्सेप्शन, लेस देन 1% इज एन एक्सेप्शन. तो हम जो रूल बनाते हैं ना वो हम नॉर्म को ध्यान में रख के बनाते हैं, ना कि एक्सेप्शन को ध्यान में रख के बनाते हैं. देयर इज अ डॉक्ट्रिन, एक्सेप्शंस डज नॉट ओवरराइड द नॉर्म. तो इसलिए रूट्स इन कम्युनिटी देखी जाती है, और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के किया गया था. इसलिए मैंने आपको मैनहट्टन प्रोजेक्ट लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया. अच्छा, फिर रूट्स इन कम्युनिटी कैसे देखी जाएगी, क्या फैक्टर्स होंगे जो डिटरमाइन किए जाएंगे. पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ रेसिडेंस इन द कम्युनिटी, कितने टाइम के लिए वो रहा है वहाँ पे. उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हिस्ट्री, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली टाइज, रिलेशनशिप, reputation, character, monetary condition, prior criminal record, prior record of being released on bail or recognizance, identity of the responsible member of the community who would vouch for his reliability, कि मतलब बाकी लोग independent person है वो क्या opinion रखते हैं उसके बारे में. Nature of the offense, probability of conviction, and likely sentence in so far as these factors are relevant. Any other factor indicating his ties to the accused, to the community, or bearing on the risk of willful failure to appear. वो भी फैक्टर्स देखने होगा कि क्या किन कारणों से हो सकता है ये ना अपीयर करे. ये सारे फैक्टर्स कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि कब किसी को पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज किया जा सकता है और कब किसी को जनरली रेगुलर बेल पे ही रिलीज करना चाहिए. पर ध्यान रखिए, इन अ बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज राइट, नॉट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. ऑलराइट, तो ये पर्सनल बॉन्ड की एक सिचुएशन थी दैट आई हैड टू आल्सो डील विद. So if the court is satisfied on the consideration of the relevant factors that the accused has its ties in the community and there is no substantial risk of non-appearance, the accused may as far as possible be released on his personal bond. Of course, if the facts are brought to the notice of the court which will show that having regard to the condition and the background of the accused, his previous record, and the nature and circumstances of the offence, there is substantial risk of his non-appearance at the trial. As for example, that the accused is a notorious bad character or is a habitual offender, or the offence is serious, then the court may not release the accused on his personal bond but may only insist on bail with sureties. But in majority of the cases, considerations like family ties, relationship, roots in communities, etc. may prevail with the court. So even while releasing the accused on the personal bond, it is necessary to caution the court that the amount of bond which it fixes should not be based merely on the nature of the charge, but should be fixed with regard to the facts and circumstances of the cases, and it should be an individualized decision depending on the individual financial circumstances of the accused and his probability of absconding. The amount of bond should be determined having regard to these relevant factors and should not be fixed mechanically according to the scheduled key or pre-decided criteria
विद रिलेशन टू द नेचर ऑफ द चार्ज। कि मैकेनिकली हम नहीं डिटरमाइन करेंगे कि अगर मान लीजिए थेफ्ट का चार्ज लगा है तो मैंने पहले ही 10,000 का अमाउंट डिसाइड करके रखा है, इस तरीके से नहीं, आप फैक्टर सर्कमस्टेंसेस इंडिविजुअल पर्सन जो आपके सामने हो उसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। Moreover, when the accused is released on his personal bond, it would be very harsh and oppressive if he is required to satisfy the court, and what we have said here in regard to court must apply in relation to the police while granting bail, that he is a solvent enough to pay the amount of bond, and if he fails to appear at the trial, and in the consequence the bond is forfeited. तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ों के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। एक प्रैक्टिस है कोर्ट में, कभी कभी वो श्योरिटी से या पर्सन से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, तो ये नहीं डिमांड करना चाहिए। जनरली शुडंट डिमांड इट। सो इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स whose names are issued, ये सैनारा खातून के फैक्ट्स पे है कि whose names in the 2 issues of Indian Express to be released forthwith on their personal bond. We have ordinarily said the personal bond to be executed by them should be with monetary obligation, but we direct as an exceptional measure that there need not be no monetary obligation in the personal bond, because we have found that all these persons have been in jail without trial for several years, and in some cases for the offences, and in jail there has been certain persons who have been in trial, who have been in jail without trial for several years, and in some cases for the offences for which punishment would in all probability be less than the period of their detention. And moreover, the order we are making was merely an interim order. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इस केस में ये बोला था कि यार उन लोगों के लिए तो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन देना ही नहीं चाहिए जो लोग बिना ट्रायल के जेल में हैं, और साथ में उन्होंने जो ऑफेंस का एलिगेशन लगा है वो ऑफेंस का पीरियड तो वो अंडर ट्रायल इनकार्सरेशन में ही बिता चुके हैं, तो उन लोगों को तो वैसे ही आज़ाद कर देना चाहिए। तो सैनारा खातून की वजह से ही योर सेक्शन 436A ऑफ द CRPC एक्चुअली अराइव। ये सैनारा खातून का बेस था, और ये लेजिस्लेचर ने कब क्या कहते हैं ऑर्डर किया था, इट केम इन CRPC in 2005. सैनारा खातून was decided in 1979, 12 फरवरी 1979। सो ध्यान रखना चाहिए कि लॉ का जो डेवलपमेंट है वो कोर्ट्स ने सबसे पहले किया है CRPC और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, वे बिफोर द लेजिस्लेचर डेट, कीपिंग इन माइंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस और बाकी चीज़ें। अब राइट टू बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस पे कुछ नुआंस है कि जो राइट टू बेल है अंडर 436 ऑफ CRPC, it has been authoritatively concluded in Rasky Lal versus Kishore Chand Khanchand that in bailable offences, right of the accused to get released on bail is absolute and indefeasible right, and courts have no discretion in granting bail in this scenario. इस जजमेंट में कोर्ट बोलता है that it's no doubt true that under 436 of the CRPC, a person accused of a bailable offence is entitled to be released on bail pending his trial as soon as it appears that the accused person is prepared to and willing to give bail. The police officer or the court before whom he offers to give bail is bound to release him on such terms as to bail as may appear to the officer or court to be reasonable. उस टर्म्स पे उसको ये अथॉरिटीज बाउंड है, उनका कोई डिस्क्रेशन नहीं चलेगा वहाँ पे। डिस्क्रेशन तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में चलता है, डिस्क्रेशन इन बेलेबल ऑफेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट। It would be open to the police officer or the court to discharge such person on him executing a bond as provided in the section instead of taking bail from him. The position of the person accused of a non-bailable offence is entirely different. Right to claim bail granted under 436 of the CRPC in a bailable offence is an absolute and indefeasible right. In a bailable offence, there is no question of discretion in grant of bail. Words of section 436 are imperative.
The only choice available to the officer or the court is as between taking a simple recognizance of the accused and demanding security with surety. इतना ही देखना है कि हम पर्सनल बॉन्ड लें, रिकॉग्निजेंस लें या श्योरिटी श्योरिटी के साथ बॉन्ड लें. दैट इज अप टू द कोर्ट. ये तीन चॉइसेस उसके पास अवेलेबल हैं, पर इससे ज़्यादा कोई चॉइस नहीं अवेलेबल है. इफ दे आर विलिंग टू, if the accused is willing to give bail or bond or recognizance as the case may be, then in that situation the court has no discretion left apart from deciding number of sureties and the conditions of appearance at the trial. उसमें ध्यान रखें कंडीशंस भी ऑनरस नहीं हो सकती. कोर्ट बेलेबल ऑफेंसेस में ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकता जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में लगती हैं. एक सिंपल सी कंडीशन होनी चाहिए कि व्हेन यू हैव टू अपीयर, देन जो भी डेट और टाइम फिक्स किया है कोर्ट ने अपीयर करने का उसके सामने, उस टाइम पे अपीयर करना होगा. और जनरल कंडीशंस ये होनी होगी कि आप इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ों को हैम्पर नहीं करेंगे, विटनेसेस को थ्रेटन नहीं करेंगे. यही जो सिंपल जनरल कंडीशंस ऑफ बेल होती हैं. कोई ऑनरस कंडीशन नहीं होंगी कि आप उसको रोज़ अपने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करेंगे, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करेंगे. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जनरली ऐसी कंडीशन लगा दी जाती हैं कि यू हैव टू रिपोर्ट टू लोकल SHO डेली, और अगर बाहर जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट के तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी. ये कंडीशंस बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं लगाई जाती हैं. ऑल राइट, इट शुड बी वेरी सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्म वाली होनी चाहिए एंड शुड बी वेरी सिंपल इन नेचर. So going further, the persons contemplated by section 436 cannot be taken into custody unless they are unable or willing to offer bail or to execute personal bonds. और अगर एक हफ्ते में वो बेल नहीं दे पाते तो आपको पता है कि उसको पर्सनल बॉन्ड पे भी रिलीज किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 436. There is no manner of doubt that bail in a bailable offence can be claimed by the accused as a right. An officer or court, as the case may be, is bound to release the accused person on bail if he is willing to abide by the reasonable conditions which are imposed on him. Conditions भी कैसी होंगी? सारी reasonable होंगी. तो ध्यान रखिएगा, it is a matter of right under 436. और 436 को कभी भी नॉन बेलेबल के मैटर से कंफ्यूज मत करिएगा. अक्सर लोग उसी की कंडीशंस रीड करने लगते हैं. तो अगर इफ़ यू आर अ मैजिस्ट्रेट, लेट अस सपोज यू बिकम अ मैजिस्ट्रेट, या आप लॉयर और आपने देखा है कि JM ने ऐसी कंडीशंस डाल दी हैं उसके अंदर जो ये ऐसे रिपोर्टेशन की बातें करती हैं कि SHO को रिपोर्ट करोगे, पासपोर्ट का इम्पाउंड कर लूँगा मैं आपका, डिस्ट्रिक्ट के बाहर आप नहीं जा सकते बिना हमें इन्फॉर्म किया, बिना हमारे परमिशन के. ये सारी अगर कंडीशंस होते हैं, यू कैन ऑलवेज अप्रोच द हायर फोरम फॉर रिलीफ एंड सेटिंग aside these conditions. ठीक है. सो ये तो बात बार बार के लिए रिपीट हो गई कि बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है. लेकिन अब ये कैंसिल, अगर मान लीजिए जो अपीयरेंस की कंडीशन है उसका वायलेशन करता है अक्यूज, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड अंडर 436 में क्या है? जुडिशियल ट्रेंड पता है क्या है? इन द जुडिशियल ट्रेंड जो बेल बॉन्ड का कैंसिलेशन होता है वो जनरली हाई कोर्ट 482 में कैंसिल करता है. हालांकि जो 436 है ये बोलता है कि आप फोर फीचर कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ट्रेंड जहां तक हम लोग को दिखता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है. रस्कीलाल वर्सेस किशोर में 2009 में जजमेंट आया था कि जो जनरल जुडिशियल ट्रेंड है ना बेल बॉन्ड को कैंसिल करने का, वो हाई कोर्ट 482 अपनी इनहेरेंट पावर में करता है. सो कहीं ये नहीं लिखा है कि आप उसको 446 में या 446A में के प्रोविजन नहीं अप्लाई करते इस केस में, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जुडिशियल ट्रेंड इज फॉर इट्स कैंसिलेशन अंडर 482. अकॉर्डिंग टू दिस, a person accused of a bailable offense is entitled to be released on bail pending his trial, but he forfeits his right to be released on bail if his conduct subsequent to his release is found to be prejudicial to fair trial. देखिए ये जो बेल है, हालांकि उसको अक्यूज के राइट को ध्यान में रखते हुए की गई है, पर अक्यूज अपने राइट का मिसयूज नहीं कर सकता. ही इज इंडल्जिंग इनटू सच एन एक्शन की जो ऑफेंस का एलिगेशन उसके ऊपर लगा है उसी को वो तोड़ने की कोशिश करे. दैट कैन नॉट बी अलाउड टू हैव. तभी मैंने बोला था बेल डवटेल्स बिटवीन द टू राइट्स. एक तो अक्यूज की लिबर्टी, दैट इज बिफोर एन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, एंड सेकंड साइड पे क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द सोसाइटी.
सोसाइटी के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा भी मिले। सो ये दोनों राइट्स के बीच में डवटेल करता है ये, और सारे बेल जूरिस्प्रूडेंस का ये सबसे सेंट्रल पॉइंट है। और जो फोर्थ फीचर अगर होता है तो दैट कैन बी मेड इफेक्टिव बाय इन्वोकिंग द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 482 ऑफ द सीआरपीसी। ये तलब हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम की जजमेंट में भी हुआ था, ये व्यू रीइटरेट हुआ था रतीलाल भांजी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स अंडर 1967। ठीक है, सो यू कैन सी दोज जजमेंट्स इफ यू वांट टू। It may be noted that the subsection 2 of the 436 of the CRPC empowers any court to refuse bail without prejudice to the action under 446 when the person fails to comply with the conditions of the bail bond, giving effect to the view expressed by this court in the above mentioned case. However, it is well settled that the bail granted to an accused with reference to the bailable offence, अब ये bailable offence का reference है कि किन situations में cancel हो सकती है accused के खिलाफ in the matters of bailable offences। पहला है कि he misuses his liberty by indulging into a similar criminal activity, सेम काम करने लगता है, वो मिसयूज करने लगता है अपनी लिबर्टी को, इन दैट सिचुएशन कैंसिल हो सकती है। इंटरफेयर्स इन द इन्वेस्टिगेशन, अटेम्प्ट्स टू टैम्पर विद द एविडेंस, अटेम्प्ट्स टू डिसुएड विटनेसेस फ्रॉम गिविंग एविडेंस, अटेम्प्ट्स टू हैम्पर स्मूथ इन्वेस्टिगेशन, अटेम्प्ट्स टू फ्ली टू अनदर कंट्री, attempts to make himself scarce by going underground or becoming unavailable to investigative agencies, attempts to place himself beyond the reach of the surety or beyond the reach of the court. These grounds are illustrative, not exhaustive. So generally इन grounds पे cancel किया जा सकता है facts और circumstances को ध्यान में रखते हुए। As mandated by section 436 of the code, what is to be ascertained by the officer of the court is whether the offence is alleged to have been committed is a bailable offence, and whether he is ready to give bail as may be directed by the officer or the court. When the police officer releases a person accused of a bailable offence, he is not required to hear the complainant at all. ऐसी कोई requirement नहीं होती कोर्ट और पुलिस ऑफिसर के सामने। कुछ हाई कोर्ट्स ने होल्ड कर लिया था कि while granting bail to an accused person, complainant को सुनना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट has expressly overruled it और बोल दिया है कि इट इज़ अ बैड लॉ। उन्होंने बोला है कि while granting bail in a bailable offences there is no requirement to hear the complainant. Similarly, a court while exercising powers under 436 of the CRPC is not bound to issue the notice to the complainant and herein. ये बात याद रखिएगा, requirement of hearing of the complainant under bailable offences is not there. तो आपके वो ग्राउंड्स कवर हो गए कि किन ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है, वो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं, ध्यान रखिए। और ये क्योटेबल है, अगर आप आंसर लिखेंगे ना 436 का तो इस जजमेंट के बिना लिख ही नहीं सकते आप। रस्की लाल वर्सेस किशोर का 2009 में डिसाइड हुआ था, इसने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को रेस्ट किया है बेलेबल ऑफेंसेस में। और अगर आप बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट करते हैं टू द कोर्ट देन यू हैव टू कीप दिस जजमेंट इन माइंड। अच्छा, कब डिस्पोज होगी बेल एप्लीकेशन? क्या आप सेम डे या मैजिस्ट्रेट एडजमेंट कर सकता है? तो जनरल रूल क्या है कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एप्लीकेशन को उसी दिन डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए जिस दिन आपके सामने प्लेस किया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए केस शुरुआत में बेलेबल था पर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बाद में ऐड हो गया उस केस में, तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति को भी बेलेबल ऑफेंस पे बेल देके आज़ाद किया गया उसको एक नई बेल एप्लीकेशन देनी होगी और प्रॉपर फोरम को अप्रोच करना होगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो ऐड किया गया है केस में उस पे उसको बेल दी जा सके। तो रिमेंबर दैट। लेट्स सपोज ए हैज बीन रिलीज्ड ऑन और केस लगा था डिफेमेशन का, डिफेमेशन और लेट्स सपोज हर सिंपल हर्ट का, बाद में वो सिंपल हर्ट कन्वर्ट हो गई, लेट्स सपोज उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी एडिशन हो गया, या उसमें ग्रीवियस हर्ट बाय द वे ऑफ एन ब्लंट इंस्ट्रूमेंट या किसी फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का भी एडिशन हो गया, या सपोज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐड हो गया उसके अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हालांकि वो पहले डिफेमेशन और बाकी मैटर्स पे आज़ाद किया गया था, लेकिन अब उसको क्या करना होगा, अब उसको एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन लानी होगी जिससे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो दिए गए हैं वो उस पर भी आज़ाद हो पाए। ये मैंने एज एन इलस्ट्रेशन दिया। फैक्चुअली कभी डिफेमेशन के केस में ये हर्ट और सिंपल वाले केसेस जनरली नहीं आते। जनरली ऐसा क्या होता है कि थेफ्ट की केसेस में हाउस ट्रेसपास के कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐड हो जाते हैं,
तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑफेंसेस बेलेबल हों और कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हों। तो अगर मान लीजिए केस में शुरुआती में वो सेक्शन ऐड नहीं किए गए हैं, बाद में वो केस में ऐड होते हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐड जब भी किया जाएगा तो उसके लिए अलग से आपको बेल लेना पड़ेगा, इफ़ अज्यूमिंग यू हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल ऑन अ बेलेबल ऑफेंसेस। अगर नहीं रिलीज कर गए तो आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में के लिए सीधे एप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में तो रिलीज होना आपका राइट है ही। तो अब गाइडलाइंस क्या है टू रिलीज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अंडर 436 ए। इसके लिए भी हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार को ही सेंट्रल क्रक्स पे रखा गया था, और इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस अदर जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि ये सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये रिटरेट किया गया। इसमें और भी एग्जॉस्टिव अलग से गाइडलाइंस आई थी। इसमें एनडीपीएस एक्ट का मैटर था, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इट्स नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। इसमें कई फॉरेनर्स भी डिटेन किए गए थे। तो पहले क्या किया था, लॉयर्स जो थे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल एड सोसाइटी थी वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ही लाई थी सबसे पहले, लेकिन फिर देखा कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में फॉरेनर और इंडियंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो आफ्टर रेफरिंग टू सेवरल जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई, और वो गाइडलाइंस ये थी कि वेयर द अंडर ट्रायल इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट प्रिस्क्राइबिंग अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और लेस, एनडीपीएस एक्ट की बात कर रहा है, then such under trial shall be released on bail if he is in jail for a period of not less than half the punishment provided for the offence with which he is charged, and where he is charged with more than one offence, the offence providing the highest punishment। तो फिर हाई अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेज हैं तो हाईएस्ट पनिशमेंट का आधा देखा जाएगा। If the offence with which he is charged prescribed the maximum fine, the bail amount shall be 50% of the said amount with 2 sureties for the like amount. If the maximum fine is not prescribed, bail shall be for the satisfaction of the concerned special judge with 2 sureties for the like amount। अब वो आप जानते हैं रीजनेबल होना चाहिए। Where the under trial accused is charged with an offence under the act providing for the punishment exceeding 5 years and fine, अब ये 5 साल से ज़्यादा है, then such an under trial shall be released on bail on the terms set out in guideline first जो अभी मैंने पढ़ी above provided, and his bail amount shall in no case be less than 50,000 and with 2 sureties of the like amount। तो अगर 5 साल से ज़्यादा है तो फिर आधे पीरियड एक्सपायर होना चाहिए, और साथ में जो उसका बेल अमाउंट जो फिक्स किया जाएगा वो 50,000 से कम का नहीं होगा with 2 sureties for the like amount। Where the under trial accused is charged with an offence under the act punishable with minimum imprisonment for 10 years and minimum fine of rupees 1 lakh, such under trial shall be released on bail if he has been in jail for not less than 5 years, provided he furnishes a bail in the sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the like amount। तो अगर मैक्सिमम फाइन 10 लाख है और मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल है, सॉरी, द मैक्सिमम फाइन इज 1 lakh and the minimum period of imprisonment is 10 years, then in that situation जो बेल का अमाउंट जो फिक्स किया जाएगा वो 1 लाख होगा, उसमें 2 श्योरिटीज होंगे फॉर द लाइक अमाउंट, एंड जो उसको रिलीज तब किया जाएगा जब मिनिमम 5 years मतलब हाफ ऑफ 10 years एक्सपायर हो जाना चाहिए। Where the under trial accused is charged for the commission of an offence punishable under section 31 and 31A of the act, then such an under trial shall not be entitled to be released by the virtue of his order। अगर section 31 and 31A of the NDPS लगा है उसको आज़ाद नहीं किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, जो NDPS एक्ट है ना, ये इसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, और जितने भी कैपिटल्स हैं पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा NDPS एक्ट का वहाँ पे यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा ये लगता है पंजाब में सबसे ज़्यादा NDPS एक्ट का यूज़ मिसयूज़ दोनों होता है, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा। तो NDPS एक्ट को जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इफ़ यू वांट टू प्रॉपरली प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ
लेकिन जुडिशियल एस्पायरेंट के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब वो जज बन जाएंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये. So the directives contained in clause 1, 2, 3 shall be subject to the general conditions that the under trial accused. अब conditions क्या लगेंगी जो directives सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किए हैं इस जजमेंट में? तो कंडीशन है कि अंडर ट्रायल अक्यूज who is entitled to be released on bail shall deposit his passport deposit करेगा with the learned judge of the concerned special court, and if he does not hold the passport he shall file an affidavit to the effect in the form that may be prescribed by the learned special judge. In the latter case, the learned special judge will, if he has reason to doubt the accuracy of the statement, write to the concerned passport officer to verify the statement, and the passport officer shall verify his record and send a reply within 3 weeks. If he fails to reply within the set time, the learned special judge will be entitled to act on the statement of under trial accused. अगर वो पासपोर्ट ऑफिसर 3 महीने में नहीं रिप्लाई करता है, then it is open to the session to the special judge to rely on the statement of the accused. The under trial accused shall, on being released on bail, present himself at the police station which has prosecuted him at least once in a month in the case of those covered under clause 1. तो वो क्या करेगा, वो महीने में एटलीस्ट एक बार उस पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेगा जिसने उसके लिए खिलाफ चार्जशीट दी है. ना सिंपल टर्म्स आपको बता देता हूँ. जो बेनिफिट ऑफ डायरेक्शन इन क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है शैल नॉट बी अवेलेबल टू दोज अक्यूज्ड who आर इन द ओपिनियन ऑफ द स्पेशल जज likely to tamper with evidence or influence prosecution witness. तो उन लोगों को आज़ाद नहीं करेगा. In case of under trial accused जो foreigner है, special judge besides impounding their passport insist on the certificate of assurance from the embassy or the high commission of the country जिसको वो belong करते हैं. फिर under trial accused shall not leave the area in relation to which the special court is constituted except with the permission of the learned special judge. तो जिस एरिया में डिस्ट्रिक्ट में है आप उसके बाहर नहीं जा सकते बिना परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट. Under trial accused may furnish the bail by depositing cash equal to the bail amount. फिर आगे क्या है, स्पेशल जज विल बी एट लिबर्टी टू कैंसिल बेल अगर बेल कंडीशंस का वायलेशन हुआ. नेक्स्ट, after the release of the under trial accused pursuant to this order, the case of those under trials who have not been released and are in jail will be accorded priority, and special court will proceed with them as provided under section 309 of the code that is CRPC. Section 309 of the CRPC की बात की गई. 309 of the CRPC talks about the remand provisions और ट्रायल प्रोविजन की भी बात करता है कि जितने भी ट्रायल्स हैं, जितना भी जो ट्रायल है वो एक्सपीडिशियसली कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसमें ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए. तो इस डायरेक्शन का बेसिकली ये मतलब है कि जिनको बेल पे नहीं रिलीज़ किया उनको प्रायोरिटी पे उनका केस आप हियर करिए और जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करिए विदाउट गिविंग एनी अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स. ऑलराइट, दैट इज़ द एम ऑफ दैट. नाउ फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देने के बाद एक बात बोली, वी मे स्टेट दैट अबव आर इंटेंडेड टू ऑपरेट एज वन टाइम डायरेक्शन फॉर केसेस in which the accused persons are in jail and their trial are delayed. तो ये वन टाइम डायरेक्शन है, बार बार डायरेक्शन उसके लिए कोर्ट को देना ज़रूरी नहीं होगा. और ये उनके लिए है वो आर अक्यूज पर्सन जो अभी जेल में है और उनका ट्रायल डिले हो रहा है. तो देखिए, तो जिन लोगों को आज़ाद करने का ऑर्डर दिया है जिसमें 10 साल में कम है तो उनका आधा, मिनिमम 10 साल से पनिशमेंट है तो आधा पनिशमेंट उन्होंने ले लिया, 5 साल से कम है तो आधा पीरियड उन्होंने इनकार्सरेशन का ले लिया, और जो भी फ़ाइन अमाउंट उस ऑफेंस पे है तो फ़ाइन अमाउंट ही बेल में कन्वर्ट कर दिया. ये सारी कंडीशंस है. लेकिन कई लोग हैं जो बहुत सीवियर ऑफेंसेस से हैं तो उनको शायद ना रिलीज़ किया जाए, तो उनके साथ क्या किया जाए. तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला था कि उनको एक्सपीडिशियसली ट्राई किया जाए और 309 ऑफ द CRPC का सीधा ढंग से कोर्ट फॉलो करे उसको. और उसमें 309 ऑफ द CRPC जनरली यही मैंडेट करता है कि आप कोई भी जो इंक्वायरी और ट्रायल है जितनी जल्दी हो सके आप उसे
डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको अननेसेसरीली क्या कहते हैं कंटिन्यू ना करें। और एक बार ट्रायल कमेंस हो गया तो दिन बाय दिन चलेगा, और जब तक सारे विटनेस एग्जामिन नहीं हो जाते, और एडजर्नमेंट बिना रीजंस टू बी रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। रेप केसेस में और ऑफेंसेस अगेंस्ट, जनरली रेप केसेस में क्या है कि जो ट्रायल है वो 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, और अटेम्प्ट कोर्ट का यही रहना चाहिए कि एज फार एज पॉसिबल आप 309 में जो एडजमेंट्स को लेकर गाइडलाइंस हैं कि आप तब तक एडजमेंट नहीं देंगे जब तक ऐसी कंडीशंस नहीं आ जाती जो पार्टी जो एडजमेंट मांग रही है उसके बियॉन्ड है, ऐसी कंडीशंस अराइज कर गई। मान लीजिए पैंडेमिक फैल गया, तब वो इस बात पे एडजमेंट मांग रहे थे तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो ये कहता है कि एडवोकेट कहता है कि मुझे दूसरे कोर्ट में उस टाइम जाना है, इस ग्राउंड पर एडजमेंट नहीं देना चाहिए। अगर विटनेसेस प्रेजेंट हैं और ऑपोजिट पार्टी कहती है कि मैं आज नहीं क्रॉस एग्जामिन कर सकता, तो इट इज़ ओपन टू द जज टू एग्जामिन देम एंड डिस्पेंस विद द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें के लिए क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 309 मेंशन किया है यहाँ पे। So that was the issues relating to the under trial, and I don't think there is any other issues regarding अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और कब उन्हें रिलीज़ करना चाहिए या बेलेबल ऑफेंस पे कब रिलीज़ करना चाहिए। जनरली अब इस पे इश्यूज़ नहीं है। एनडीपीएस एक्ट का एक मैटर था वो मैंने डील कर दिया, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ और सीआरपीसी से ही रिलेट करता है और रिलीज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे बताना ज़रूरी था। दैट इज़ वाई आई डिस्कस द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पे रिलीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। लेकिन क्योंकि इसमें सीआरपीसी के भी बहुत सारे प्रोविजंस का मैटर शामिल था, स्पेशली सेक्शन 436A ऑफ द सीआरपीसी, इसलिए वो मेंशन करना ज़रूरी था। सो गाइडलाइंस मैं तो बता दी हैं। तो 436A विल डील विद व्हेन द टाइम्स कम्स, एंड नेक्स्ट विल बेल के जितने भी बाकी प्रोविजंस हैं वो हम लोग स्लोली डील करते जाएंगे एज द फ्यूचर लेक्चर सेशंस अराइव। तो अब आज के लिए तो ख़त्म हो गया। We'll meet you in the next session.